السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایس سی زمرہ بندی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ بی آر ایس اور کانگریس دونوں دلت مخالف۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے عام سے وزیر اعظم کا خطاب۔ کرنٹ چاہیے یا کانگریس؟ کسان فیصلہ کریں۔ راہل وضاحت کریں کہ کتنے گھنٹے برقی دیں گے۔ کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی لہر۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے دوروں میں زبردست جوش و خروش۔ دوسرے امیدواروں کی مہم بھی عروج پر۔ اور نارکوٹکس ٹیم نے نشاور گولیوں کی منتقلی کے ریاکٹ کو کیا بے نقاب۔ 1464 گولیاں ضبط، 2 افراد گرفتار۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری۔ دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال۔ 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بی آر ایس اور کانگریس دونوں دلت مخالف پارٹیاں ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ میں بی جے پی کی انتخابی مہم کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد جتنی بھی پارٹیاں اور سیاسی قائدین نے مادگا طبقے سے وعدے کیے اور دھوکہ دیا، وہ بھی ایک سیاسی قائد ہیں۔ ان تمام قائدین کی جانب سے میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کرشنا مادگا کی جدوجہد کی تعریف کے پل باندھے اور ان کو بھی اپنی اس جدوجہد میں شامل کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے مادگا طبقے کو زمرہ بندی سے متعلق ٹھوس اعلان کرنے کے بجائے صرف تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایس سی زمرہ بندی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے اور مادگا طبقے کی جو جدوجہد ہے اس میں ان کے ساتھ بی جے پی کھڑے رہی ہے، اس کے لیے وہ پابند عہد ہے۔ بی آر ایس حکومت نے تلنگانہ تشکیل کے بعد دلتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کانگریس پارٹی نے بھی مرکزی سطح پر بابا صاحب امبیڈکر اور دیگر دلت قائدین کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ خریف موسم میں 20 لاکھ کوئنٹل بوائلڈ رائس مرکزی حکومت خریدے گی۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت بھی تعاون کرے۔
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने अवाम से सवाल किया कि इनको करंट चाहिए या कांग्रेस इसका फैसला कर ले। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अवाम को किसी एक को चुनना है, करंट चाहिए या कांग्रेस। किसानों को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी से सवाल करें कि उनका मौक़िफ़ क्या है, कितने घंटे बरक़ी देंगे। सदर पीसीसी कह रहे हैं कि 3 घंटे और कर्नाटक के डिप्टी वज़ीर आला कह रहे हैं कि 5 घंटे। आखिर कितने घंटे बरक़ी देंगे इसका सवाल वो उठाएं। केटीआर ने राहुल गांधी से कहा है कि वो इस सिलसिले में वजाहत करें कि कांग्रेस पार्टी कितने घंटे बरक़ी देना चाहती है। इन्होंने कहा है कि इतने साल हुकूमत की थी, 24 घंटे बरक़ी क्यों नहीं दी, और अब किसानों को 3 घंटे और 5 घंटे बरक़ी देने की बात की जा रही है। केटीआर ने कहा है कि बीआरएस का मतलब फसल की कटौती, कांग्रेस का मतलब बरक़ी कटौती। इन्होंने किसानों से अपील की है कि वो कांग्रेस से सवाल करें। 3 గంటల కరెంట్ కావాలన్న మాట ఏదైతే ఇవాళ కాంగ్రెస్ మాట్లాడుతుందో ఇది రాహుల్ గాంధీ వివరణ ఇవ్వాలి. వచ్చి ఇక్కడ బాగా డైలాగులు కొట్టిన రైతు డిక్లరేషన్ అది ఇదని ఆయన వివరణ ఇవ్వాలా, తెలంగాణ రైతాంగానికి చెప్పాలా. ఇది మీ విధానమా? ఏంది మీ విధానం? ఇదేం పద్ధతి? నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా 24 గంటల కరెంట్ ఉంటే ఒక ఆయనేమో కర్ణాటకకి వెళ్ళి 5 గంటల కరెంట్ అంటాడు, మీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఏమో 3 గంటల కరెంట్ అంటాడు. అసలు మీ విధానం ఏంది? 3 గంటలా 5 గంటలా? అలానే చెప్తావండి. ఇవాళ ఈ రకంగా మాట్లాడడం తెలంగాణ ప్రజలు డెఫినెట్గా బెంబేలెత్తుతారు ఇట్లా చేస్తే వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఇదివరకు వీళ్ళు సర్వనాశనం చేసిపోయిన వాళ్ళే వీళ్ళు. మళ్ళా అదే పద్ధతిలో మాట్లాడితే డెఫినెట్గా ప్రజలు అనుమానపడతారు, తప్పకుండా వీళ్ళని వదిలిపెట్టరు. అందుకే నేను ఇచ్చే పిలుపు కూడా ఏంటంటే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ నాయకులు నిలదీయండి ఊరూరా. ఈ 3 గంటల కరెంట్ అనే మాట మీద అడగండి, డిమాండ్ చేయండి. ఏ పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే రాష్ట్రంలో ఒక ఆయన వచ్చేమో తాండూరులో 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తామంటాడు, ఇక్కడ వచ్చేమో ఈయన 3 గంటల కరెంట్ అంటాడు. ఏది మీ పాలసీ చెప్పండి. रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तमाम सीटों पर बीआरएस कामयाब होगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि 9 साल में हैदराबाद की तरक्की हुई है। इन्होंने कहा है कि सदर पीसीसी अपनी ज़बान को लगाम दे, इस तरह की ज़बान को अवाम कबूल नहीं करेगी। शख्सियत देखकर अल्फाज का इस्तेमाल करें। ईद याकर राव और उनके खिलाफ मनमानी गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस पर गौर करे। 25 नवंबर को वज़ीर आला का जलसे आम हैदराबाद में होगा। जगह की अभी निशानदही नहीं की गई है। कांग्रेस जो डिक्लेरेशन जारी कर रही है, इस पर सवाल किससे करें। दीगर रियासतों के कायदीन अगर डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, कोड़ंगल में रेवंत रेड्डी और हुजूराबाद में ही ई राजेंद्र को शिकस्त होगी। दोनों कायदीन अपनी आला क़यादत को बताने के लिए वो वज़ीर आला के मुकाबले शिकस्त से 2-4 हुए हैं, इसलिए बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर बलदी नज़वन साख केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना बकवास रियासत नहीं है। पार्टनर्स प्रोग्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि 10 सालों में 24 घंटे हम पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। आवारा कुत्तों के मसले पर केटीआर ने कहा है कि ये एक संगीन मसला है, लेकिन हम गैर इंसानी तौर पर उनका कत्ल भी नहीं कर सकते। हम कुत्तों की आबादी पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हैदराबाद 2036 तक ओलंपिक की मेज़बानी करने के काबिल हो जाएगा। इसके लिए हमें जदीद स्पोर्ट्स स्टेडियम की ज़रूरत है, जो एक ख्वाब है। केटीआर ने कहा है कि तिजारती इलाकों में साफ सफाई को और भी बेहतर बनाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी अपना मंशूर दीपावली त्यौहार के बाद जारी करेगी। इन्होंने कहा है कि रियासत में बीजेपी की कामयाबी का मौका है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के अहम कायदीन और मरकज़ी कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इन्होंने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टियां एक ही हैं। किशन रेड्डी ने कहा है कि कर्नाटक को कांग्रेस पार्टी ने कमज़ोर कर दिया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला नरेंद्र मोदी हैदराबाद के मुसलसल दौरे पर हैं। 25 नवंबर को करीमनगर, 26 नवंबर को निर्मल और 27 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो में वो हिस्सा लेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मुनगौड़ असेंबली हल्के की कांग्रेस की उम्मीदवार पी श्रवंती ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी को एक ब्रोकर चला रहा है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नजरिया नहीं बल्कि पैसे के नारे पर चल रही है।
इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनको धोखा दिया। कोमटी रेड्डी ब्रदर्स जो कहेंगे वही फैसले पार्टी में किए जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गई। प्रीत श्रवंती ने कहा है कि आवाम के लिए काम करने वाली पार्टी बीआरएस है, इसलिए वो बीआरएस में शामिल होंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बहादुरपुरा में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन के अलावा इंचार्ज हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार के अलावा हल्के के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। सदर मजलिस ने अपने खिताब में मौजूद रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान की खिदमात की सताइश की और कारकुनों पर मजलिस को हमेशा की तरह रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने पर जोर दिया है। सदर मजलिस ने वोटिंग के तनासुब में इजाफे के लिए भी तवज्जो देने पर जोर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने पार्टी के सदर व मोतमदीन को हिदायत दी कि मजलिस के इक़दामात और कारनामों खिदमात से अवाम को वाकिफ कराया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी इस बार तारीख रकम करने जा रहे हैं। अकबर अवैसी की इंतखाबी दौरों के दौरान इंसानी सरों का समंदर और आवाम का वालिहाना इस्तकबाल उनकी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी का इशारा दे रहा है। हफ्ते को अकबर अवैसी ने जावेद नगर से अपने दौरे का आगाज़ किया। इन्होंने मोहम्मद नगर, अकबर नगर, ललिता बाग, फतेह शाह नगर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। अकबर अवैसी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हल्के चंद्रायन गुट्टा के अवाम को यकीन दिलाया कि तालीम के जिस इनकलाब का आगाज़ हुआ है वो हमेशा जारी रहेगा। हल्के में 50 स्कूल कायम किए जाएंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की खिदमात पर अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कसरत से गुलकोशी की। इस मौके पर हल्के चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हल्के मलकपेट में मजलिस की लहर देखी जा रही है। चौथी मियाद के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे अहमद बलाला की पद यात्राओं में ज़बरदस्त अवामी जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा सलीम नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और अहमद बलाला को एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। सलीम नगर में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और अहमद बलाला का अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह गुलपोशी की गई। इससे पहले मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के चंचलगुड़ा खल्ले से अपने दौरे का आगाज़ करते हुए आसपास के इलाकों का अहाता किया। आजमपुरा डिवीज़न में भी अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम ने हल्के के लिए अहमद बलाला की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी गुलपोशी की और इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स SM अबरार और सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली याकूतपुरा के मजलिस पार्टी के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के रैन बाजार डिवीज़न का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर इन्होंने मॉर्निंग स्टार होटल, इमाम बाड़ा, अलसफा डेयरी, अवैसी प्लेग्राउंड, दरगाह ज़ोहराबी के अलावा इसके अतराफ़ के इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों से फ़र्दन मुलाकात की। मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने का अज़्म किया। शाम के औकात में जाफर हुसैन मेराज ने शारजा फंक्शन हॉल, तालाब कट्टा, मुराद महल, अमान नगर बी के अलावा इसके करीब के इलाकों का दौरा किया है। मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन मेराज का पुरतबाक इस्तकबाल किया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने का तयक़ुन दिया। जाफर हुसैन मेराज ने अपने दौरे में घर घर जाकर मकीनों से मुलाकातें की और उन्हें वोट देने की अपील की। इस मौके पर हल्का असम्बली याकूतपुरा के तमाम डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स, इंचार्ज हल्का असम्बली याकूतपुरा यासर अरफात और मुकामी मजलिस के लीडर्स भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के विजयनगर डिवीज़न का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर इन्होंने अंजुमन मेन गेट, रॉयल्टी होटल, यूनियन बैंक, वाइट फेडरल स्कूल, मजदूरों का अड्डा और जहां आरा मस्जिद के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया। इन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देने की अपील की। अलावाजी माजिद हुसैन ने घर घर जाकर ज़ईफ़ अफराद से भी मुलाकात की है, जिस पर इन्होंने माजिद हुसैन को मुबारकबादी की दुआ दी। इस मौके पर हल्का असम्बली नामपल्ली के तमाम डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर इन्होंने अकरा स्कूल, महबूब कॉलोनी, तालकगड्डा, तालीम अमलापुर, गौसिया बाग, आइसक्रीम होटल, फैज़ चमन, सुल्तान अली बाग, मदीना मस्जिद, कुमारवाड़ी, मुस्तैदपुरा, दरवेश फंक्शन हॉल, सब्जी मंडी, शर्फी चमन, पानीपुरा, पंच भाई का अलावा के अलावा इसके अतराफ़ के इलाकों का अहाता किया। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया और मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। सदर मजलिस ने मकीनों से फ़र्दन मुलाकात की। इस मौके पर हल्का असम्बली कारवान के तमाम डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन मौजूद थे।
चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने हफ्ते को मंडी मीर आलम, जोहरा नगर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने मजलिस को वोट देकर इत्तेहाद मिल्लत को मजबूत बनाने की अपील की। आवाम ने मजलिस के उम्मीदवार को तयक़ुन दिया कि हमेशा की तरह हल्के की आवाम मजलिस के साथ खड़ी है। इस मौके पर रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, इंचार्ज चार मीनार मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर राज मोहन, महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना और आलमदार वाला जाही के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का चार मीनार में मजलिसी उम्मीदवार की मुहिम में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। विमलावाड़ा से टिकट से महरूम की गई बीजेपी की लीडर टी उमा ने हफ्ते को अपनी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई है तो इन्होंने कहा है कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि उनके सामने वो आ सके। अगर कोई आएंगे तो उन्हें चप्पल से पीटेंगी। TSNAB की टीम ने अफजलगंज पुलिस के ताउन से मनशियात की गोलियों के अलावा दूसरी अशिया को जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रियासत कर्नाटक बीदर के मुतवत्तिन बरजू पाध्याय और किशन विट्ठल राव कोमले को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि बरजू 13 क्रिमिनल मुकदमात में माकूज है। वो गुज़िश्ता 14 साल से अपने अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर मनशियात की गोलियाँ निट्राविट हैदराबाद, बीदर और गुलबर्गा में किशन लाल के जरिए फराहम करता था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 1464 निट्राविट की गोलियां और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए, जिसकी जुमला मालियत 30,000 रुपये बताई जाती है। हैदराबाद के नवाही इलाके सन सिटी में पटाखों की दुकानों में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब अचानक एक दुकान में आग लगी, जिसने मुत्तसिल फूड कोर्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया और वहां रखा सिलेंडर फट पड़ा। आग और भी 2 दुकानों में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। एससी जुमराबंदी के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। बीआरएस और कांग्रेस दोनों दलित मुखालिफ। परेड ग्राउंड जलसे आम से वज़ीर आज़म का खिताब। करंट चाहिए या कांग्रेस, किसान फैसला करें। राहुल वजाहत करें कि कितने घंटे बरक़ी देंगे। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के दौरों में ज़बरदस्त जोश व खरोश। दूसरे उम्मीदवारों की मुहिम भी उरूज पर। और नारकोटिक्स टीम ने नशावर गोलियों की मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब। 1464 गोलियां जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।